Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So, good morning, everyone, and a very warm welcome to all our dear students and staff members. I am Soumya Grover, and it is my pleasure to welcome you to this faculty led live online class on financial reporting, statements, and analysis. This session has been thoughtfully organized as an additional academic initiative to enhance your conceptual clarity and practical understanding of the subject. I welcome our esteemed faculty member who will take up today's class, Miss Dipali Ratra ma'am. Welcome, ma'am. Thank you, Soumya ma'am. Dear students, I encourage you to participate actively, ask questions, and make the most of this exclusive opportunity to learn directly from the faculty expert. Over to you, Dipali ma'am. Thanks, ma'am. Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning to all. Is it Good visible to morning, everybody? ma'am. Okay, shall we begin with the topic? Participants? Soumya ma'am, shall I start? Yes, ma'am. Okay. So today we are starting with the unit 1, that is the basics of accounting. So the first topic is regarding what the accounting is. Accounting is basically, it is a process of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting which type of transaction which are related to the business and which we can measure in terms of money. That means in accounting, we are dealing completely with the money. That means whatever the business is doing, first we are recording those things, then we are classifying on the basis of their nature. We are analyzing those transactions. After analyzing, we are interpreting the results out of that. So accounting keeps a permanent record of all the business transactions because these recordings are required for the auditing purpose. That is further required for the tax filing and the other things. So accounting is recording of transaction is very much required for any kind of business. Accounting helps in knowing the true financial position of the business also. Even if the owner wants to know okay, how my business is growing, whether I'm in the right direction or not, for that purpose also, we need to keep the records of our financial transactions. So let's start with this is a definition of the accounting, which is given by the American Institute of Certified Public Accountants. According to them, accounting is an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transactions, and events, which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. So let's break down this definition. First, it is saying that it is an art. Basically, accounting is both. It is an art as well as the science. Why we are saying it the art? Because an artistic person, what that person used to do, that person makes everything beautiful, presentable. So in the accounting also, we are presenting our business transactions in a legible, in an understandable way. So that is why we are saying accounting as an art. It is an art of recording, how we are recording the things, like how we used to keep the things in our drawer, in our in our place so that we can easily get those things whenever we require. So in the accounting also, it is a process of recording the things, then classifying the things as we let's just take an example of your kitchen. We are keeping the things in our kitchen or in our almirah. We are keeping the same type of things at the same place, like all the handkerchiefs at the same drawer, all the socks in the same drawer, so that whenever we need those things, we can easily get those. So, in the same way, we are doing the same thing we are doing in the accounting also. We are keeping the things that is recording. We are classifying according to the nature of the things.
and then summarizing. We are getting how much things we are having. In the accounting, we are summarizing how many expenses we have done till now, what revenue we have generated till now. So we are summarizing the things also. But everything we are doing in a systematic manner, not haphazardly we are doing the things in a systematic manner. And which type of transaction, which type of things we are keeping in the accounts, only those things which we can measure in terms of money. That means the things which we cannot measure in terms of money, they are having no place in the accounting. Though they are having the impact on our business, but still in the accounting, we are concerned only with the things which we can measure in terms of money. The next one, we are keeping the things which are the transactions. Later on, I will explain what is the difference between the transaction and the event. So the things should be in the financial character. And after maintaining the record, classifying the thing, summarizing the thing, then we analyze and interpret whether our business is doing correctly or not. So this is all about the definition of accounting. Next, the another definition given by the American Accounting Association. According to them, accounting is a process in which we are identifying, measuring, communicating economic information to permit informed judgments and decisions by the users of accounting. That means in the accounting, we are first identifying which things we need to show, which things we don't need to show. Then we are measuring those. We are communicating the things to the people who are actually interested in the business. Any doubt till now? Any doubt in the definition? Participants or the students? Okay. Now move to the characteristics of the accounting. The first characteristic of accounting is to identify the financial transactions and the events. So as I told earlier also, that in the accounting, we are concerned only with the financial transactions, the transactions which we can measure in terms of money. There is a difference between the term transactions and the event. When we are talking about the transaction means something in exchange. While we are recording the transactions, while we are maintaining our records in the accounts, we are concerned with the transactions where there is an exchange of something. Like if I'm selling something, if the business is selling something, the business is handing over the product to the customer, and in exchange, the customer is giving the money in any form to the business. So that is called the transaction in which there is something in exchange. In accounting, we are recording the events also. But events in case of the events, there is no exchange. It can be one-sided. Okay? If the business is getting something like charity, the business is getting some gift, the business is getting, that is called the event. There is no exchange. So, say the second characteristic, it is measuring those transactions. Then we are keeping the record of those transactions in a systematic manner. We are classifying those transactions which are of similar nature, like all the expenses at the one place, all the revenues at the one place. After classifying the things, we are summarizing. We are doing the totaling basically. Okay, how much expenses we have done till now, how much revenue I have generated till now. After that, we are analyzing, we are matching our expenses with the revenues. And in case our expenses are more than our revenues, we say that the business is not in a good position. On the other hand, if the revenue is more than the expenses, we can say our business is running in a good manner. Then keeping those things with ourselves doesn't make any sense unless and until you communicate the things to the people who are actually interested in the business. Now, who are the people who are interested in our business? Any guess? Who can be interested in our business? Participants? Um, I'm asking
What kind of people can be interested in our business? The people who needs the thing that we are selling. Um, you can say is it the customer? Yes, the customer. Okay. Who else? Who can have any interest in our business? The first person is the owner, that is the management. The first interest is it of owner of the business. They are interested in our business. They are having the interest. The employees of the business, they are interested because they want to know whether the business is doing well or not, whether our job is secured in this business or not. Okay. Any doubt till now? Okay, let's move further. Now comes to the objective of accounting. Why we are keeping these things? Why we are maintaining the records of the things? Uh, ऐसा तो नहीं है कि जब अकाउंटिंग से पहले जो था बिजनेस नहीं चलता था. Are you okay with the language? Can I use Hindi and English mix? Participants? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अच्छा एक बात बताइए, अगर अकाउंटिंग नहीं था, जब तक अकाउंटिंग नहीं था तब तक क्या लोग बिजनेस नहीं करते थे, या उनको अपना करती बिजनेस? हाँ जी. करती थी मैम। करते थे और उनको ये नहीं पता चलता था कि उनका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है? पता था मैम, पता। पता चलता था, है ना? तो फिर अब ये चीज पहले भी होती थी, जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, जब से ये बाटर सिस्टम, पहले बाटर सिस्टम हुआ करता था, देन देयर इज एक्सचेंज ऑफ मनी स्टार्ट हुआ. जब लोग प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते थे, तब भी लोगों को पता होता था कि उनका बिजनेस, हाउ देयर बिजनेस इज डूइंग. ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम क्या था? जब तक एक सिंगल हैंडेडली आप किसी चीज को हैंडल कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ही अकेले हो, आप ही सारी ट्रांजेक्शन्स हैंडल कर रहे हो, आप ही प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो, आप ही सेल कर रहे हो, आप ही मनी रिसीव कर रहे हो, आप ही डिपॉजिट कर रहे हो, जब एक सिंगल पर्सन सारी ट्रांजेक्शन्स को कर रहा है, वो पर्सन जो है वो उसको रिकॉर्ड नहीं भी मेंटेन करेगा चलेगा, क्योंकि उसको पता है कि वट एवर इज हैपनिंग इट इज डन बाय मी ओनली. ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जब आपके बिजनेस में मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. ऑनर है, एक अकेला ऑनर सारी चीजें नहीं कर सकता. ठीक है. उसको प्रोडक्ट भी बाय करके लाना है, उसको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी लेने हैं, उसको बैंक के साथ भी डील करना है, उसको कस्टमर के साथ भी डील करना है. एक अकेला पर्सन जो है, एक अकेला बिजनेसमैन जो है, वो पूरी ट्रांजेक्शन्स हैंडल नहीं कर सकता, बिजनेस की सारी चीजें हैंडल नहीं कर सकता. ठीक है. दैट पर्सन हैज टू इन्वॉल्व द आउटसाइडर्स इन द बिजनेस. लाइक वी हैव टू कीप द एम्प्लॉयज, we have to deal with the suppliers. They are the mediators between the business and the suppliers. There is a mediator between the seller and the customers. There is a bank. Okay, the people who are dealing with the bank. As the business is growing at the larger scale, more and more people involved in our business. ठीक है. अब उस केस में क्या होगा? अगर अगेन हमारे फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हैं, वी कैन ट्रस्ट देम. लेकिन आउटसाइडर्स इन्वॉल्व है, तो देयर माइट बी हैपन ना कि देयर माइट बी सम थेफ्ट, as it is not their business, so they are not keeping the things in the way that we want. ठीक है. हो सकता है कुछ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया, कुछ नहीं किया, कुछ चीजें उनको याद रही नहीं रही. मेरा बिजनेस थोड़ी ना है. वाई शुड आई नीड टू पुट सो मेनी एफर्ट्स? इन दैट केस व्हाट हैपन कि कुछ चीजें मिस हो गई, कुछ पैसा इधर से उधर हो गया. ठीक है. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स राइज हो जाएंगी. बिजनेस प्रॉफिट में जाता हुआ भी लॉस में आ जाएगा. तो इसलिए आपको अगर एक रैशनल डिसीजन लेना है, एक बिजनेसमैन को अगर अच्छा डिसीजन लेना है, तो उसके लिए उसको रिकॉर्डिंग और सारे अकाउंट, सारे ट्रांजेक्शन्स के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है. तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का? कि हम एक रैशनल डिसीजन ले सके. एक रैशनल डिसीजन लेने के लिए आपके पास पहले सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए, और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? दैट इज अवर अकाउंट्स. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव,
वी नीड टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। वाई वी नीड टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स? क्योंकि आज की डेट में आपको अपने बिजनेस का टैक्स भरना है। ठीक है, आपको टैक्स आप किस बेसिस पे फिल करोगे? जब आप टैक्स फिल करते हो तो आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ते हैं। ऑडिटिंग के अंदर ऑडिटर आपका चेक करता है कि आपने कितना एक्सपेंस किया, कितना रेवेन्यू जनरेट किया। ठीक है, दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम वाउचर्स, सब डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपने उन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया, ठीक है, अगर आपने अपनी जो भी प्रोडक्ट्स को बाय किया, आपने उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, तो ऑडिटर क्या कहेगा कि आपने सिर्फ सेल्स की है, आपने कम सामान बाय किया और उससे आपने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, आपको इस पे इतना टैक्स फिल करना पड़ेगा। अगेन दैट इज अ बर्डन फॉर द बिजनेस। सो फॉर ऑल दोज थिंग्स यू नीड टू मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड्स। ये हमने इतना एक्सपेंस किया, इतना मेरा खर्चा हुआ, ये मेरा प्रोडक्ट का एक्सपेंस हुआ, ये मेरा बिजनेस को रन करने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, वाटर एक्सपेंसेस आए, एम्प्लॉयज का खर्चा आया, दैट रेवेन्यू आई हैव जनरेटेड, एंड while we are matching it, it is our my profit, and on this profit I need to pay the tax. And that is possible only when we are keeping the systematic records of the transactions. Next, we need to maintain the accounts because we want to know how we are running our business, whether we are doing more of expenses or we are generating more of revenues. We want to know about the financial position of the business. Mind it, there is a difference between the business profitability and the business I can't hear you. position. I can't hear you. You want to ask something? Okay. There is a difference between the financial position of the business and the financial profitability. Anybody can tell me the difference, ki how financial profitability is different from the financial position of the business? Any of the participant? Participant, do you know about the difference between the profitability and the position? Okay. Financial profitability means how much revenue you are generating. कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हैव यू एवर गॉन टू मोर? रिलायंस फ्रेश गए हैं, जहाँ पे वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं, Yes. फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एक रिलायंस फ्रेश आप ले लो और एक जो हमारे वेंडर्स हैं, नॉर्मल हमारे जो हमारी वेजिटेबल मार्केट्स में वेंडर हैं, हु इज हैविंग द बेटर फाइनेंशियल पोजीशन? रिलायंस फ्रेश? आप किसको बोलोगे कि कौन रिच है, कौन वेल्दी है? इज इट द रिलायंस फ्रेश एंड द वेंडर दैट इज इन अवर वेजिटेबल मार्केट? हु इज मोर वेल्दियर? Reliance Fresh. Why so? Both are selling the vegetables. बिकॉज उनका रेवेन्यू ज्यादा होता है, मतलब लोग वहां पर ज्यादा जाते हैं। Ma'am, they are maintaining accounts. Okay. Ma'am, position matters, the value, the goodwill in the market. Okay. Okay. चलो मैं अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। लेट्स से They provide good offers. ओके, आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, यू आर ऑल्सो अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ। हम दोनों का रेवेन्यू कैसा है? इज इट सेम और डिफरेंट? सेम। Same, because I am also earning 1 lakh, you are also earning 1 lakh. So revenue that we are generating, the income that we are generating is same. ठीक है, ओके। मेरे पास ऑल्टो है, आपके पास ऑडी है। हु इज मोर वेल्दियर, मी और यू? us because we have Audi. बिकॉज यू आर हैविंग ऑडी। लेकिन कार तो कार है ना, मेरे पास ऑल्टो है, आपके पास ऑडी है। Quality, यस, और Brand name. their features, यस, और their adaptiveness और पावर कंजप्शन और इंजन की इनकम पावर सोर्स, ज्यादा होता है, इनकम ब्रांड सोर्स वैल्यू भी मेन। एक अलग होती है।
अच्छा एक बात बताओ, reputation in the market. Daily ऑडी weight. का प्राइस और ऑल्टो का प्राइस सेम है? बहुत No, डिफरेंट है ma'am. मैम। डिफरेंट है ना, बहुत डिफरेंट है ना। कौन ज्यादा एक्सपेंसिव है, ऑडी या ऑल्टो? ओडी एक्सपेंसिव। ऑडी एक्सपेंसिव है ना। तो अगर फाइनेंशियल पोजीशन देखोगे तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मेरी फाइनेंशियल पोजीशन से अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एसेट है, आपके पास जो गाड़ी है, दैट इज एक्सपेंसिव वन, और मेरे पास जो गाड़ी है दैट इज नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, है ना। तो दैट मीन्स फाइनेंशियल पोजीशन अगर आपको किसी की देखनी है तो हु सेज हु रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, दैट इज द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, दो लोग बिजनेस सेम कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से बिट्टू टिक्की वाला है, दैट इज ऑल्सो सेलिंग द टिक्की, ठीक है। रोड साइड पे जो वेंडर है दैट इज ऑल्सो सेलिंग द टिक्की। बोथ आर जनरेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, दोनों का सेम इनकम आ रहा है, तो फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी दोनों का सेम है। लेकिन BTW जो है, दैट इज अ रिनोन्ड ब्रांड, उसकी एसेट्स हैं, उसकी फ्रेंचाइजीज हैं, उसके पास ज्यादा अच्छा बैठने का प्लेस है, ठीक है। तो उसका फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो रोड साइड वेंडर से ज्यादा अच्छा है। तो नाउ इज इट क्लियर कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द पोजीशन? यस और नो? Yes, sir. क्लास, इज इट क्लियर? Yes. यस मैम। ओके, सो वाइल वी आर मेंटेनिंग द अकाउंट्स ना, हमें दोनों चीजें पता चलती हैं कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है और मेरा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट्स, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में से आप रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हो और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या आ रही है। फॉर गेटिंग दोज थिंग्स वी नीड टू कीप द अकाउंट्स, हमें वो सारी चीजों का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। The last objective is to know about the solvency position of the business. Solvency means कि in the near future how long we can run our business, कितना हम अपना बिजनेस चला सकते हैं, उसको हम बोलते हैं solvency. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी क्या है कि मेरे पास सिर्फ मेरे पास अगर आज कोई सेल नहीं होती तो मैं सिर्फ 1 वीक तक अपना बिजनेस और रन कर सकती हूँ, 1 वीक के बाद जो है हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या हुआ कि अगर अगले 10 साल तक या अगले 5 साल तक भी कोई अच्छा क्लाइंट हमारे पास नहीं आया, हमारा बिजनेस अच्छी पोजीशन में नहीं हुआ, तब भी हम अपना बिजनेस रन कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ठीक है। अभी देखो कोविड में क्या हुआ, कोविड आया, जिन लोगों के पास, जिन बिजनेसेस के पास फाइनेंस मतलब लिक्विड कैश अवेलेबल नहीं था, वो बिजनेस क्या हुए, बंद हो गए कोविड के टाइम पे, क्योंकि इट टेक्स अनदर, मतलब इट टेक, उसका इफेक्ट जो रहा हमारा अबाउट 2 to 3 years तक हमारा कोविड का इफेक्ट रहा, है ना। तो जिन बिजनेसेस के पास अच्छा कैश लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं था, वो 2 3 years तक, मतलब 6 months के बाद भी वो उनको अपना शट डाउन करना पड़ा। लेकिन जो बिजनेस अच्छा मेंटेनेंस करके चल रहे थे, हर चीज को वेल प्लान करके चल रहे थे, उनके पास अच्छा अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी था, दे आर एबल टू सर्वाइव द कोविड टाइम, ठीक है। तो अकाउंटिंग से हमें ये भी पता चलता है कि हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, मैं अपना बिजनेस कितने टाइम तक और रन कर सकती हूँ इन केस सम वर्स्ट हैपन इन द बिजनेस, ठीक है। इज इट क्लियर क्लास? एनी डाउट टिल नाउ? No, ma'am. Ma'am. लेट्स मूव फर्दर। दिस इज होल अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग इसके बाहर कुछ भी नहीं है। दिस इज अकाउंटिंग। जो हम अकाउंटिंग का फियर है ना, अकाउंटिंग इज नथिंग बट दिस प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले आप ये ढूंढो कि आपको किस चीज को रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है हमें? द थिंग्स विच आर इन मॉनेटरी टर्म और नॉन मॉनेटरी टर्म? Monetary term. वेरी नाइस। द थिंग्स विच आर इन मॉनेटरी टर्म्स, जो मनी की टर्म में है, हमें उनको सिर्फ रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले आप ये ढूंढो कि हमने अपने बिजनेस में क्या क्या किया जिसमें मनी इन्वॉल्व था, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप आता है हमारा जर्नल एंट्रीज। दिस इज बेसिकली रिकॉर्डिंग। हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद हमने चीजों को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के लिए हम एक बुक मेंटेन करते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द जर्नल, ठीक है। जब अकाउंटिंग बना था ना, तब अकाउंटिंग पेपर पर होता था, तब
लोग बुक्स में एक रजिस्टर में सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे। अभी भी लोग, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो डेली का अपना रिकॉर्डिंग रजिस्टर पे करते हैं। एनी गेस, आपने कभी किसी को देखा है कि जैसे कोई ट्रांजेक्शन होती है वो कहीं पे लिखते हैं उस ट्रांजेक्शन को? हैव यू एवर सीन? Yes, ma'am. कहाँ Yes, पर? ma'am. किस टाइप के बिजनेस में देखा? Local shop vendors, हाँ, गुड। मैक्सिमम जो ये कार्ट्स वाले होते हैं। कार्ड्स वाले कैसे, मतलब? अच्छा, जो अच्छा ठीक है, ओके फाइन। हु एल्स? Ma'am, the persons who work with the daily wages based labors. ठीक है, वो भी अपना डेली लिख लेते हैं अकाउंट्स। अच्छा, कभी केमिस्ट को विजिट किया है? Yes, ma'am. केमिस्ट भी जो भी मेडिसिन अगर वो देता है तो रजिस्टर में नोट डाउन डेली करता है। वेरी नाइस। जबकि वो आपको इलेक्ट्रॉनिक, आपको बिल प्रोवाइड कर रहा है, जी। लेकिन केमिस्ट जब भी आपको कोई मेडिसिन इशू करते हैं ना, इमीडिएटली दैट पर्सन रिकॉर्ड इन द रजिस्टर कि मैंने ये वाली मेडिसिन जो है वो इशू कर दी, है ना? अब उसको लिख के फायदा क्या है जब वो आपको स्लिप दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्लिप दे रहा है, तो वाई दैट पर्सन इज कीपिंग दैट थिंग बाय हैंड? Ma'am, because they have to maintain their stock also. वेरी नाइस, एक्सीलेंट। व्हाट एल्स? और क्या और पर्पस हो जो सकता है? उसका अगर उसका स्टॉक में अगर वो अवेलेबल है या नहीं है वो उसको भी रहता है। यस, वेरी गुड। देखो, इतनी बड़ी केमिस्ट शॉप है, इतने छोटे छोटे बॉक्सेस उसने अपनी छोटी सी शॉप में रखे हुए होते हैं। अब डेली बेसिस पे तो वो अपना हर बॉक्स चेक नहीं करता ना, है ना? अब अगर वो डेली अपने हाथ से रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है तो व्हाट विल हैपन, उसको पता चल जाएगा कि आज दो तीन फायदे हैं इसके। देखो क्या है, पहला कि मेरे पास आज मैंने कितनी मेडिसिन इशू कर दी, कौन सी इशू कर दी, ठीक है? दूसरा, उसको ये पता चल जाएगा कि भैया आज की इस सीजन में ये डिजीज जो है वो सबसे ज्यादा स्प्रेड हो रही है, तो अगर मुझे स्टॉक मेंटेन करना है तो मैं इस मेडिसिन का स्टॉक मेंटेन कर लूं, है ना? केमिस्ट शॉप में अगर एक्सपायरी हो गई चीजों की तो वो सारा सामान उसका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो दे आर द मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग दोज रिकॉर्ड्स। अगर वो इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करेगा तो उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। कैसे? कुछ मेडिसिन होंगी जो ओवर स्टॉक में पड़ी रहेंगी, कुछ मेडिसिन ऐसी होंगी जो खत्म हो जाएंगी, ठीक है, और उसके पास अवेलेबल नहीं होगी। और अगर आप अपने कस्टमर को एक से दूसरी बार वापस भेजोगे ना, तीसरी बार आपका कस्टमर आपकी शॉप पे नहीं आएगा। ओके, सो इन द सेम वे बिजनेस में भी है। बिजनेस के अंदर क्या है कि बिजनेस अपना पहले हर ट्रांजेक्शन को मैन्युअली रिकॉर्ड करता था, ठीक है, लेकिन उसको रिकॉर्डिंग का एक सिस्टमैटिक वे होता था। ऐसे ही नहीं कि रैंडमली हमने कहीं पे भी कोई भी चीज रिकॉर्ड कर ली। अगर आप अपनी फैमिली में भी देखोगे, आपकी मम्मा या आपकी फैमिली में जो हु सो एवर इज रनिंग द किचन और द फैमिली का जो भी एक्सपेंसेस मेंटेन कर रहा है, दोज पीपल ऑल्सो यूज टू मेंटेन द रिकॉर्ड कि इतना ग्रोसरी आ गया। एक पेज होगा ग्रोसरी का, होगा एक पेज होगा क्लोथिंग का, होगा एक पेज होगा अदर एक्सपेंसेस का, होगा एक पेज होगा लेजर आइटम्स का, होगा। एट द एंड ऑफ द मंथ, बाय सीइंग दोज रिकॉर्ड्स दे कैन सी कि भैया हमने कहाँ पे कितना खर्चा ज्यादा कर दिया, है ना? तो जर्नल में हम क्या कर रहे हैं, जर्नल में वी आर कीपिंग द रिकॉर्ड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर दैट यू विल लर्न इन द लेटर यूनिट्स कि हाउ वी यूज टू मेंटेन द जर्नल्स, कैसे मेंटेन करते हैं। देयर इज अ सिस्टमैटिक वे टू डू दैट। देन देयर इज अ लेजर। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पेज पे मैंने सारा ग्रॉसरी रिकॉर्ड किया, एक पे मैंने अदर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए, दिस इज कॉल्ड अ क्लासिफिकेशन। दिस क्लासिफिकेशन वी यूज टू डू इन द लेजर। दिस इज ऑल्सो यू विल लर्न इन डिटेल इन द फर्दर यूनिट्स। Then we are summarizing the things. That means we are totaling the expenses or the incomes. That is that we used to do in the trial balance. And by using those summaries, we used to maintain our final accounts. And the final accounts, we used to maintain the three things. There are the two accounts that we used to maintain, and there is one statement that I used to maintain. I'm again emphasizing we are maintaining two accounts and the one statement. The two accounts that we are maintaining, that is the trading account and profit and loss account. These two things are called the accounts. Okay? And balance sheet is called the statement. Now, what is the difference between the accounts and the statement? Any guess? Participants, any guess? What is the difference between the accounts and the statement? Ma'am, statement shows the some compact summarized detail of the
any transaction, and account shows the brief description of any transaction. Okay. Any other guess? Accounts are daily. Ma'am, Accounts are for accounts daily basis, and statements are for annual records. Okay. Any other guess? Ma'am, accounts are the summarized transactions, and the statement is the final outcome of those transactions after analyzing. Okay. Statements Okay. are for statutory requirement also. Not accounts? This They also. all This also. यस, ये तीनों ही हमारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आप अपने अकाउंट्स ऑडिट कराते हो ना, तीनों चाहिए। अभी हम इसको अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो रियल लाइफ में है ना, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट एक साथ लोग बनाते हैं। बिजनेस, अगर आप किसी बिजनेस का अकाउंट सीखोगे ना, दे यूज टू मेंटेन ऑल दोज थिंग्स टुगेदर। ठीक है। अच्छा, अब अकाउंट्स और बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या है, स्टेटमेंट और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। अकाउंटिंग के अंदर ना, देखो, हमारा बिजनेस जो है ना, अभी आगे अभी हम पढ़ते हैं, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी शॉर्ट में सुनो। हमने पूरे साल में हमने कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स किया। ठीक है। तो हमने, लेट्स से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, और ये चलता है नेक्स्ट 31 मार्च तक चलता है। जैसे अभी 2025 में 1 अप्रैल 2025 से अकाउंट्स बनने शुरू हुए। ठीक है। और वो एंड कब होंगे, 31 मार्च 2026 को एंड होगा। ठीक है। हर बिजनेस इस एक साल में अपना बिजनेस में जो भी किया ना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। अब पूरे साल बिजनेस ने क्या किया, मतलब क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या एक्सपेंसेस पे किए, वट एवर द बिजनेस हैज डन पूरे साल का। ठीक है। एक एक दिन का रिकॉर्ड मेंटेन बिजनेस के पास होता है। ओके। वो पूरे साल का जो अकाउंट्स, जो पूरे साल की ट्रांजेक्शन्स है ना, वो बिजनेस मेंटेन करता है किसके अंदर, अकाउंट्स के अंदर। ठीक है। यानी कि इधर ट्रेडिंग में जाएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दैट वी विल लर्न लेटर ऑन। ठीक है। तो पूरे साल आपने जो भी किया, उस पूरे साल की एक एक ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं किसके अंदर, या तो ट्रेडिंग के अंदर या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। बैलेंस शीट में क्या है, अगर मैं आज आपसे पूछूं, लेट से पूरे महीने आपको 1 दिसंबर को आपके पापा ने, आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ पॉकेट मनी दिया। ठीक है। लास्ट में 31 दिसंबर को पेरेंट पूछते हैं कि अब बताओ कि आपके पॉकेट में कितना पैसा है। लेट से पापा ने 5,000 रुपीज दिए या मम्मा ने 5,000 रुपीज दिए। आपने पूरा मंथ, क्योंकि न्यू ईयर आया, क्रिसमस आया, आपने बहुत सारे एक्सपेंसेस किया, किसी का बर्थडे आया, कुछ कुछ आपने सेलिब्रेट किया। फर्स्ट डे आपने 500 रुपीज स्पेंड कर दिए, देन नेक्स्ट नेक्स्ट डे, आफ्टर 10 और 15 डेज आपने 1,000 रुपीज स्पेंड कर दिए, देन 2,000 रुपीज स्पेंड कर दिए। मैं आपसे पूछती हूँ, आज आपकी पॉकेट में कितना पैसा पड़ा है, तो आप क्या बताओगे, मुझे पूरा डिटेल बताओगे। Is balance it. आप सिर्फ मुझे बैलेंस बताओगे, है ना, कि आज की डेट में 5,000 में से टोटल इतना खर्चा हो चुका है। लेट से मैं 3,500 स्पेंड कर चुकी हूँ। अब मेरी आज की डेट में मेरे पास कितना पैसा है, 1,500 रुपीज इज एज ऑफ टुडे। टुडे इज 28 दिसंबर को मेरी जेब में 1,500 रुपये पड़े हुए हैं। ठीक है। विल दिस 1,500 रुपीज बी देयर टिल 31 दिसंबर, यस और नो। अब इस 1,500 रुपये को पूरा नेक्स्ट वीक तक रखोगे, या कुछ इसमें से खर्च होगा या कुछ ऐड हो जाएगा, विल इट हैपन। Yes. होगा ना। आज से 1,500 रुपये हैं, शाम तक ही वो 1,500 का हो सकता है 500 रह जाए। विल इट हैपन। और हो सकता है कि हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए, मेरी नानी आ जाए, दादी आ जाए, थोड़ा सा मुझे पैसे दे जाए, तो ये 1,500 और बढ़ भी सकता है। ठीक है। तो बैलेंस शीट जो है ना, वो एज ऑफ मूवमेंट की बात करती है कि आज की डेट में अभी बताओ आपके पास क्या अवेलेबल है। ठीक है। तो स्टेटमेंट जो बात करती है ना, उस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए बात करती है। और जो अकाउंट्स हैं, वो ड्यूरिंग द ईयर आपने जो भी किया या ड्यूरिंग दिस पीरियड आपने जो भी किया, उसकी डिटेलिंग की बात करता है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, लेट्स मूव फर्दर। एनी डाउट टिल नाउ बच्चे? नो मैम। चले No, आगे। ma'am. चलो,
अब पहले कुछ कुछ चीजें समझते हैं कि अकाउंट्स में जब हम बात करेंगे हम बहुत फ्रीक्वेंट इन टर्म्स को यूज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैम ट्रांजेक्शन बोल रही हैं तो उसका मतलब क्या है। ट्रांजेक्शन का मतलब हम हमेशा क्या बोलेंगे कि देयर इज समथिंग एक्सचेंज, कुछ एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, बिजनेस ने किसी को कुछ दिया और उससे बिजनेस को कुछ रिसीव हुआ, दैट मीन्स देयर इज समथिंग इन एक्सचेंज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। गुड्स और सर्विसेज, बिजनेस में या तो आप कुछ टेंजिबल चीजों का एक्सचेंज कर रहे हो या फिर इनटेंजिबल चीजों का एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, लाइक मेरा ग्रोसरी शॉप है तो मैं टेंजिबल चीजों का एक्सचेंज करूंगी। मैं आपको कोई ग्रोसरी आइटम दूंगी, मैं आपको राइस दे दिया, ठीक है, मैंने आपको पल्सेस दे दी, मैंने आपको सॉल्ट दे दिया, शुगर दे दिया, दिस इज टेंजिबल। मैंने आपको कार सेल कर दी, मैंने आपको बुक्स दे दी, पेन दे दिया, दीज थिंग्स आर टेंजिबल। लेकिन हर बिजनेस टेंजिबल चीजों में तो नहीं डील करता ना। लाइक हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या डॉक्टर हमें कुछ प्रोडक्ट देता है? यस और नो? No, ma'am. नो मैम। अच्छा, मैं आपको टीच कर रही हूँ, एम आई गिविंग सम टेंजिबल थिंग्स टू यू? मतलब टेंजिबल जिसको आप टच कर सकते हो, कोई No. प्रोडक्ट आपको दे रही हूँ क्या? नहीं दे No, रही ना। ma'am. वट आई एम डूइंग, आई एम गिविंग माई सर्विसेज टू यू। ठीक है, तो बिजनेस में या तो एक्सचेंज हो रहा होगा गुड्स का या एक्सचेंज हो रहा होगा सर्विसेज का। ठीक है, मैंने आपको कोई सर्विस दी, आप उस सर्विस के अगेंस्ट मुझे पे कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो दैट ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स ईदर द गुड्स और द सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हम बहुत फ्रीक्वेंट जो यूज करेंगे दैट इज द प्रॉफिट। व्हाट इज प्रॉफिट? दैट इज द डिफरेंस, द अमाउंट दैट द बिजनेस हैज जनरेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स एक्सपेंसेस। मैंने, लेट्स से मैं एक पेन लेकर आई 10 रुपीज का, वो पेन मैंने आपको 50 रुपीज का सेल किया। ठीक है, तो 50 - 10, 40 रुपीज इज माई प्रॉफिट। क्लियर बच्चा पार्टी? इज इट क्लियर? प्रॉफिट इज यस क्लियर? मैम। Clear. Yes, यस ma'am. मैम। अच्छा, अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछते तो आई एम प्रिज्यूमिंग कि वट एवर आई एम टीचिंग यू, वट एवर आई एम डिलीवरिंग यू, यू आर गेटिंग ऑल दिस। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आए ना तो आप बीच में मुझसे पूछोगे, क्योंकि अगर आपने ये बेसिक टर्म्स को नहीं क्लियर किया तो आपको आगे अकाउंटिंग समझ में नहीं आएगा। तो ये बेसिक्स आपने मुझसे पूछने हैं वेन एवर देयर इज अ डाउट। ठीक है, नेक्स्ट इज बिजनेस। अकाउंट्स हम हमेशा किसके लिए करेंगे? बिजनेस के लिए करेंगे। और बिजनेस होता क्या है? अच्छा, आज अगर मैंने अपनी गाड़ी बेच दी, एम आई डूइंग द बिजनेस? No, ma'am. व्हाई No, नॉट? ma'am. मैंने कुछ सेल किया ना। But that was for the first time, one time. Business is a continuous activity. एक्सीलेंट दीपांशी, वेरी नाइस। बिजनेस हम तब बोलेंगे जब मैं एक चीज को बार बार कर रही हूँ, ऑन रेगुलर बेसिस पे कर रही हूँ। अगर मैं कोई कार डीलर हूँ और मैं डेली कार बेचती हूँ, ठीक है, डेली कार बाय करती हूँ, देन आई विल, इट विल बी कॉल्ड द बिजनेस। वन टाइम एक्टिविटी विल नेवर बी कॉल्ड द बिजनेस। ठीक है, तो अगर मैंने एक बार जाके अपनी गाड़ी बेची तो इट इज नॉट कॉल्ड द बिजनेस। ठीक है, अगर मैं रेगुलर बेसिस पे वो काम करती हूँ देन इट विल कॉल द बिजनेस। तो अकाउंटिंग हम किसके लिए कर रहे हैं? Self healing. फॉर बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के लिए कर रहे हैं। अकाउंट्स हम बिजनेस के लिए मेंटेन कर रहे हैं, नॉट फॉर माई सेल्फ। ओके, नेक्स्ट, एसेट्स क्या है? एसेट्स वो चीजें हैं जिनको मैं यूज करूंगी, बहुत लंबे टाइम तक करूंगी, जिसके ऊपर मेरे राइट्स हैं, जिसको मैं जैसे यूज करना चाहूँ कर सकती हूँ। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हु आर द पार्टिसिपेंट्स हियर? दीपांशी सबसे ज्यादा आंसर कर रही है ना, तो दीपांशी से बात करते हैं। दीपांशी, आज आप Yes, अपनी कार मुझे दे गए, ठीक है, आप जा रहे हो फॉरेन ट्रिप पर, और दीपांशी ने जाते जाते अपनी कार जो है वो मुझे दे दी। उसने बोला कि मैम मैं 15-20 डेज के बाद आऊंगी, तब तक मेरी कार आप अपने पास रख लो और आप इसको चला भी लेना। ठीक है, क्या वो मेरी एसेट हुई? no, ma'am. व्हाई नॉट? Ma'am, because you are not the owner of the car. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरे पास सिर्फ कार का पोजेशन है, ठीक है, लेकिन कार की ऑनर कौन हुई? वो दीपांशी हुई। तो मैं दीपांशी की कार को कुछ भी नहीं कर सकती, मैंने, मुझे उसने सिर्फ उसको यूज करने के राइट्स दिए हैं, तो मैं सिर्फ उसको यूज कर सकती हूँ। बट मैं उस कार का कलर चेंज करवाने जा सकती हूँ? No, ma'am. नहीं करवा सकती, है ना। मैं उस कार का इंजन चेंज कर दूं?
Solution and Ayurvedic treatment. Oh, okay, Devesh. What is the solution? ओके, एसेट्स वो चीजें हैं जिनको हम, जो मेरी हैं, जिसके ऊपर मेरा राइट है, जिसको मैं जैसे यूज करना चाहूँ कर सकती हूँ, ठीक है। और एसेट्स और एक्सपेंसेस में डिफरेंस है, ठीक है। एसेट्स वो चीजें हैं जिसको हम लॉन्ग टाइम तक अपने बिजनेस में यूज करेंगे और जिसका बेनिफिट बिजनेस को अचीव होगा। दोज थिंग्स आर कॉल्ड द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। द नेक्स्ट वन इज द लायबिलिटी। लायबिलिटीज क्या हुई? लायबिलिटी मतलब कि मैम आपके ऊपर क्या मतलब दया हुआ था, मतलब कि ऋण, तो आपकी लायबिलिटी आपको इसको देना है। बिल्कुल सही। मेरी ऑब्लिगेशंस क्या है? वेरी गुड राहुल। मेरी बिल्कुल ऑब्लिगेशंस आप क्या है? अगर मैंने किसी से पैसा लिया तो मुझे उसको वापस भी करना है ना, तो दैट इज कॉल्ड माई लायबिलिटी। मैम एक ठीक है। तरीके से जो अभी आपने कार ली है, जो हाँ आपको कार जी। 10 डेज 15 डेज के लिए मिली है, वो भी एक तरीके से आपकी लाइबिलिटी है। एक्सेलेंट देवेश, यस, इट इज करेक्ट। मेरे पास किसी ने कोई अपनी चीज दी, मैंने उसको यूज किया ना। देखो देवेश, इस केस में वो लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि दीपांशी मुझे बाय हर विश मुझे अपनी कार का पोजीशन देके गई है। लायबिलिटी मेरे लिए तब होती जब मैं उससे वो चीज रिक्वेस्ट करके लेती, ठीक है। अगर मैं दीपांशी को ये बोलती कि दीपांशी मुझे 1 वीक के लिए कार की रिक्वायरमेंट है, प्लीज मुझे अपनी कार दे दो, ठीक है, मैं आपको इसके अगेंस्ट 500 रुपीज पर डे का पे कर दूंगी, देन दैट विल बी कॉल्ड द लायबिलिटी। ठीक है, जो मैंने मांग के लिया, जो मेरा ऑब्लिगेशन है। अगर किसी ने मुझे कुछ गिफ्ट कर दिया या अपनी इच्छा से कोई मुझे कुछ दे गया तो वो मेरी लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। लायबिलिटी तब होगी जब बिजनेस ने किसी से कुछ लिया और अब बिजनेस को उसको रिटर्न भी करना है, देन इट विल बी कॉल्ड द लायबिलिटी। इज इट क्लियर देवेश? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट, रेवेन्यू। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म रेवेन्यू एंड इनकम, ठीक है। रेवेन्यू क्या हुआ? लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं एक पेन 10 रुपए का लेकर आई, मैंने उस पेन को 50 रुपए में सेल किया, ठीक है। मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? ₹40 का मैम, ₹40 का। 40 रुपीज का, 40 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया है ना। तो रेवेन्यू जो होगा ना वो मेरा 50 रुपीज है। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि कितना बिजनेस को पैसा मिला, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। ओके। अब प्रॉफिट कितना हुआ? रेवेन्यू हुआ 50 रुपीज का, प्रॉफिट विल बी ऑफ 40 रुपीज। इज इट क्लियर? डिफरेंस क्लियर है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में? ओके, चलो। यस मैम। आप, नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या हुए? जो बिजनेस को चलाने के लिए वट एवर आई एम स्पेंडिंग, ठीक है, टू रन अ बिजनेस, वट एवर एक्सपेंसेस वी आर डूइंग, वट एवर अमाउंट वी आर स्पेंडिंग टू कीप अवर बिजनेस इन अ रनिंग पोजिशन, दोज आर कॉल्ड द एक्सपेंसेस, ठीक है। लाइक मेरा शोरूम है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा, लाइट्स चाहिए, मुझे एसी चाहिए, ठीक है, मेरे को एम्प्लॉयज चाहिए, सेल्स पर्सन चाहिए टू सेल द प्रोडक्ट। तो whatever amount I'm spending to run my business, those are called, those things are called the expenses. Clear? चलो जी Yes, ma'am. नेक्स्ट। यस मैम। अच्छा, ये डेटर और क्रेडिटर बड़े आते हैं हमारे। डेटर मतलब कौन हुआ? वो पर्सन जो हमसे सामान ले गया लेकिन उसने हमको पेमेंट नहीं किया। वो पर्सन जो हमसे सर्विसेज ले गया लेकिन उसने हमें हमारी सर्विसेज के लिए पे नहीं किया, ठीक है। तो दोज पीपल आर कॉल्ड द डेटर। फॉर एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल? मैम अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं तो जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं या होलसेलर्स हैं जो हमारे से हाँ बल्क में लेते हैं, वो हो गए हाँ हाँ, बिल्कुल सही। वो हमारे कौन हो गए? डेटर हो गए। डेटर्स, हो गए और हम उनके क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए। क्रेडिटर, हो गए। ठीक है। तो अगर मैं किसी को कुछ सामान दे रही हूँ, एक्सीलेंट देवेश, मैं किसी को कोई सामान दे रही हूँ तो मैं उसकी क्रेडिटर हो गई और वो पर्सन मेरा कौन हो गया? डेटर हो गया। इज इट क्लियर टू रेस्ट ऑफ द पीपल? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. मैम गुड। लेनदार और देनदार हुआ ना दोनों का मतलब। हाँ, लेनदार और देनदार हुआ, बिल्कुल सही, करेक्ट। लेनदार कौन हुआ? डेटर और क्रेडिटर? मैम क्रेडिटर। लेनदार जिसने लेना है। डेटर डेटर। हाँ,
लेनदार और देनदार, लेनदार हुआ डेटर और देनदार हुआ क्रेडिटर। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. मेरी स्क्रीन हैंग हो गई है, जस्ट अ मिनट। ओके, नॉट मूविंग। ओके, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कौन हुई? ड्राइंग देखो, वो होता है जो हम बिजनेस से अपने खुद के खर्च के लिए निकालते हैं। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑनर जो होता है ना, अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई चीज बिजनेस से ले रहा है तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कपड़े का बिजनेस है, ठीक है। अगर वो कपड़ा मैं आपको बेच रही हूँ, आपको सेल कर रही हूँ, तो उससे मुझे रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन अपने ही शॉप में से एक कपड़ा उठा के, एक ड्रेस उठा के मैंने खुद अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज कर लिया, तो दैट विल बी कॉल्ड द ड्राइंग्स। ओके, नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो पर्सन हुआ जिसके पास लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं और उसके पास एसेट्स नहीं है, ठीक है। यानी कि कल को कुछ बुरा समय आया तो उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो उस चीज को हैंडल कर सके, अपना बिजनेस चला सके या किसी को पे ऑफ कर सके बाय सेलिंग इट्स एसेट्स। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमारे दो तरीके के एक्सपेंडिचर्स हैं, वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, द अनदर वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ? जो करंट नेचर की, यानी कि डे टू डे बेसिस के लिए जो मुझे खर्चे करने हैं, दोज आर कॉल्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिसको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मैं कर रही हूँ, लाइक अपने ऑफिस का एसी रिप्लेस कर रही हूँ, क्योंकि अगर एसी नहीं हुआ तो क्लाइंट को गर्मी लगेगी, गर्मी लगेगी तो क्लाइंट्स मेरी शॉप पे खड़े नहीं होंगे, लाइट नहीं होगी तो क्लाइंट मेरी शॉप पे खड़ा होकर सामान देखेगा कैसे? तो दोज आर कॉल्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ कि मैंने अभी, मेरा एक रूम का शॉप था, अब मैंने दूसरा रूम भी ले लिया, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब आप फिक्स एसेट्स में खर्चा करते हो तो दोज आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब आप रनिंग चीजों में, जो आपका बिजनेस में डेली यूज हो रहा है, उस पे जो आप खर्चा कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट टर्म है आपके ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि मैं आपके पास डेली एक पेन लेने आती हूँ, ठीक है, 10 रुपए का पेन पड़ता है। आपने मुझे क्या बोला कि मैम आप डेली तो आते हो पेन लेने के लिए, रोज 10 रुपए खर्च करते हो, आप एक साथ ऐसा करो, मेरे से 10 पेन ले जाओ। जो पेन आपको 10 रुपए का पड़ता है ना, वो पेन मैं आपको 9 रुपए का दे दूंगा, ठीक है। तो वो जो 1 रुपीज का मुझे पर पेन में डिस्काउंट मिला, दैट इज कॉल्ड द ट्रेड डिस्काउंट। वो ट्रेड डिस्काउंट क्यों ऑफर होता है? ताकि कस्टमर जो है वो हमसे ज्यादा प्रोडक्ट को बाय कर ले, उसके लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब आपने बोला कि मैम आपके वैसे 100 रुपए बनते, अब आपके 90 रुपीज बन गए, आप अगले हफ्ते आओगे, मुझे 90 रुपीज दे देना। अब बीच में आपने मुझे कॉल किया कि मैम आप ना मुझे अगर 2 दिन में पेमेंट कर दोगे ना, तो मैं 90 की जगह ना वही 10 पेन आपको 85 रुपीज के दे दूंगा। तो फर्दर मुझे कितना डिस्काउंट मिल गया? 5 रुपीज का और डिस्काउंट मिल गया। दैट एक्स्ट्रा 5 रुपीज डिस्काउंट मुझे क्यों मिला? अगर मैं अर्ली पेमेंट करती हूँ, तो दैट डिस्काउंट विल बी कॉल्ड द कैश डिस्काउंट। क्लियर है? इज इट क्लियर? ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। Yes, ma'am. यस मैम। Yes. ट्रेड डिस्काउंट दिया ताकि मैं ज्यादा प्रोडक्ट को बाय करूं, कैश डिस्काउंट मिला ताकि मैं जल्दी पेमेंट कर दूं, ठीक है। और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, इसको हम बुक्स में शो नहीं करते, लेकिन हम कैश डिस्काउंट्स को शो करते हैं, दैट वी विल सी लेटर। नाउ इनकम स्टेटमेंट्स। इनकम स्टेटमेंट्स में हम दो चीजें बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट में हम दिस इज द स्टेटमेंट, ये एक ही बना रहे हैं स्टेटमेंट, और एक पर्टिकुलर डेट को बनेगी, ठीक है। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या है? ये तो सब मुझे बता सकते हैं कि अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज कि हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चलेगी। दूसरा, हमें मैनेजमेंट को हेल्प हो जाएगा डिसीजन मेकिंग में। लाइक मैं 4-5 प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, सिर्फ एक प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होती है, ठीक है, बाकी 4 प्रोडक्ट्स ऐसे आइडल पड़े रहते हैं। तो अब ये रिकॉर्ड्स देख के मुझे समझ में आ जाएगा ना कि अगर मुझे फर्दर कुछ बाय करना है तो मैं उस प्रोडक्ट को बाय करूंगी जिसमें ज्यादा सेल हो रही है, और जिन प्रोडक्ट्स की सेल ज्यादा अच्छी नहीं है उनको कम बाय करूँ, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी में हेल्पफुल है। मैं अपने प्रीवियस ईयर के डेटा को, मतलब प्रीवियस ईयर को आपके करंट ईयर से कंपेयर कर सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ लास्ट ईयर मैंने कितना कमाया था, इस बार मैंने कितना कमाया, ठीक है। मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ अपने कॉम्पिटिटर से, मेरा कॉम्पिटिटर इतना अर्न कर रहा है, मैं इतना अर्न कर रही हूँ,
तो दैट इज ऑल्सो डन थ्रू द अकाउंटिंग ओनली। टैक्स लायबिलिटी पे करनी है, अगेन फॉर दैट अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड। आपको बैंक से लोन भी लेने जाना है ना, तो बैंक वाले पहले क्या बोलेंगे कि अपना अकाउंट्स दिखाओ, ठीक है, आप दिखाओ आपका बिजनेस चल कैसा रहा है। तो उसके लिए भी हमें उनको अकाउंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और बिजनेस में एन नंबर ऑफ डिसीजंस के लिए भी हमें अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस ठीक है। मैम। Yes, अब भैया ma'am. अकाउंटिंग की हमने इतनी तारीफें कर ली, लेकिन अकाउंटिंग भगवान नहीं है, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहला, अकाउंटिंग प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज मतलब जो चीजें हमने बोली ना, जैसे मैंने बोला कि रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, गुड्स, सर्विसेज, ये ना इसके अंदर कुछ ना कुछ बायसनेस इन्वॉल्व है, ठीक है, सब्जेक्टिव है। जो चीज मेरे लिए एसेट है वो हो सकता है आपके लिए गुड्स हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में जो एसी लगा हुआ है, मेरे लिए वो क्या होगा? इज इट एसेट और गुड्स? हम एसेट। एसेट होगी, है ना। और आपकी शॉप में अगर एसी लगा हुआ है तो वो Good. वो भी है। वो भी एसेट है, वो भी एसेट है, ठीक है। Oh, लेकिन अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है और वहां पे जो एसी पड़े हुए हैं वो क्या है? गुड्स। that is मैम good. वो गुड्स हैं, वो गुड्स हैं यस, मैम, यस, क्योंकि उसे आप यस। सेल करके प्रॉफिट अर्न करोगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो जो चीज मेरे लिए एसेट है वो आपके लिए गुड्स है, ठीक है। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पे क्लियर कट डिमार्केशन करना ना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। दूसरा, हम प्रॉफिट, अगर हम बोले प्रॉफिट टर्म, तो प्रॉफिट टर्म मेरे लिए अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 500 रुपये की कोई चीज सेल की, मेरा 100 रुपये उसमें खर्चा आया था उसको लेकर आने में, मेरे को प्रॉफिट हुआ 400। मैं आपको बोल रही हूँ मेरा 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मैंने अब क्या किया, मैंने सिर्फ गुड्स की कॉस्ट को उसमें से माइनस किया। अब भैया मैं मार्केट भी तो गई ना, मार्केट जाने में मैंने 50 रुपये और खर्च किए थे। फिर मार्केट जब मैं गई, मैं वहां पे कुछ खा पी कर भी आई, मैंने 50 रुपये वहां पे भी खर्च किए थे। अगर मैं उन खर्चों को भी देखूं तो मेरे हाथ में पैसा कितना आया? ओनली 300 रुपीज बचा ना, जिसको मैं पहले 400 बोल रही थी। अब इट इज अप टू मी कि मैं किसको प्रॉफिट मानती हूँ, आप किसको प्रॉफिट मानते हो सकता है मैं जो 400 का प्रॉफिट बोल रही हूँ, आप कह रहे हो हमारे मैम आप तो बेवकूफ हो, वो 50 रुपये जो आप ट्रेवलिंग में खर्च करके आए हो वो भी तो आपका खर्चा हुआ। फिर मार्केट गए थे, वहां पे आपने कुछ खाया पिया, वो भी तो खर्चा हुआ। तो अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको 400 रुपये का प्रॉफिट नहीं होता, आपको 300 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अकाउंट्स में ना टर्म्स सब्जेक्टिव हैं। कुछ टर्म्स मैं अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करोगे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है अकाउंटिंग के अंदर। सेकंड है आपका हिस्टोरिकल वैल्यूज। अकाउंट्स जो है ना, जो ऑलरेडी आप पास्ट में जो चीजें कर चुके हो, सिर्फ हम उनको रिकॉर्ड करके उनके बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो चीजें पास्ट में हो चुकी हैं उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट उसके बेसिस पे हम आगे फ्यूचर में डिसीजंस लेंगे। तो दैट दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। नेक्स्ट, अकाउंटिंग जो है ना प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है। प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब क्या है कि कोई चीज पहले मुझे 20 रुपए में मिल रही थी, अब वही चीज मुझे 50 रुपए में मिल रही है। लेट्स से मैं एक प्रोडक्ट है 100 रुपीज में सेल करती हूँ, ठीक है। मैंने उसको 3 महीने पहले उसको खरीदा था, तो आई बॉट इट फॉर द 20 रुपीज। 100 - 20, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 80 रुपीज का, है ना। अब मेरी शॉप में वो चीज खत्म हो गई, मैं उस प्रोडक्ट को अभी भी आपको 100 रुपीज में ही सेल कर रही हूँ, लेकिन अब मार्केट में उस चीज का प्राइस बढ़ गया 50 रुपीज का। अब मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 50 रुपीज का। अब हम क्या कहेंगे कि बिजनेस तो खराब चल रहा है। पहले तो बिजनेस अच्छा चल रहा था, अब बिजनेस खराब चल रहा है। पहले बिजनेस में 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब बिजनेस में सिर्फ 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। वी आर नॉट डूइंग द बिजनेस इन अ गुड मैनर, बट इज इट सो? नो मैम। ऐसा ही हो रहा है क्या? No, हम तो ma'am. वैसा ही कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे, है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई? Prices change हो गए मैम. यस, सिर्फ प्राइसेस चेंज हो गए, लेकिन अकाउंटिंग ना, क्योंकि अकाउंटिंग तो सिर्फ पैसे का लेन देन जानता है, ठीक है। अकाउंटिंग क्या कहेगा कि भैया पहले आप बिजनेस बहुत अच्छा चला रहे थे, आप एक्स्ट्रा 30 रुपीज अर्न कर रहे थे, अब आप बिजनेस बहुत बेकार चला रहे हो, अब आपका 30 रुपए का नुकसान होना शुरू हो गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अकाउंटिंग जो है वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर करता है। क्वालिटेटिव मतलब जिन चीजों को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर आता है। फॉर एग्जाम्पल,
आपके यहाँ पे आपकी शॉप पे बहुत पुराना एम्प्लॉय बैठा हुआ था, आप उसके भरोसे बिजनेस छोड़कर वेकेशंस पे भी चले जाते थे, न्यू क्लाइंट्स के साथ डील करने भी चले जाते थे। ठीक है, जब तक वो एम्प्लॉय आपकी शॉप पे रहा, आप बहुत फ्रीडम के साथ काम करते थे, आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा था, आप उसको 50,000 रुपीज पर मंथ पे कर रहे थे। ठीक है, अब समहाउ वो एम्प्लॉय आपका बिजनेस छोड़ के चला गया और एक नया एम्प्लॉय आ गया, उसको भी आप 50,000 रुपीज पे कर रहे हो। लेकिन अब क्योंकि वो नया एम्प्लॉय है, आप उसके भरोसे शॉप छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि अभी आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप शॉप्स उसके भरोसे छोड़ नहीं सकते, तो आप नए क्लाइंट्स को भी मीटिंग के लिए नहीं जा रहे, तो आप नए क्लाइंट्स भी लूज कर रहे हो। अगर आप मॉनेटरी टर्म में देखोगे तो पहले वाले को भी आप 50,000 दे रहे थे, अभी वाले को भी आप 50,000 दे रहे हो, है ना। लेकिन डिफरेंस कहाँ आया? ड्यू टू द क्वालिटी। पहले वाले एम्प्लॉय पे आपको ट्रस्ट था, पुराना एम्प्लॉय था, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है उसको पता था। नए वाले एम्प्लॉय को अभी ये सारी चीजें नहीं पता, इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर आएगा। बट अकाउंटिंग क्या कह रहा है कि पहले वाले को 50 दिया, इसको भी 50 दिया, तो दे इज नो डिफरेंस इन द एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन क्वालिटी की वजह से बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा। सो अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन ये है कि अकाउंटिंग क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब आप डमी को जैसे कपड़े पहनाओगे ना, डमी वैसा ही लगेगा। इन द सेम वे अकाउंटिंग के अंदर आप जैसे अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करना चाहते हो, अकाउंटिंग वैसी ही दिखेगी। अगर आप अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल दिखाना चाहते हो, आप प्रॉफिटेबल दिखा सकते हो, अपने खर्चे कम दिखा दो। ठीक है, अगर आपको बिजनेस ये दिखाना है कि लॉस में जा रहा है, तो आप वो भी दिखा सकते हो, आप अपने खर्चे बढ़ा दो, बढ़ा के दिखा दो। ठीक है, तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। एनी डाउट टिल नाउ? No, ma'am. हाँ, दिस इज यूनिट 1। ठीक है, आज हम एक यूनिट 1 ही कंप्लीट कर पाए। सौम्या मैम, रुचि, रुचि मैम, Yes, ma'am. मैम, shall I continue further or need to break here? Ma'am, I think it's enough for today Okay. because we planned for a 1 hour lecture, right? Yes. Yeah. So if students you have any doubt of this topic, you can just ask. No, ma'am. No, ma'am. It's और कोई यूनिट्स अगर आपने इस सब्जेक्ट की पढ़ी हो, आपको उसमें कुछ पूछना हो, आप वो भी पूछ सकते हो। मैम, वन थिंग आई वांट टू आस्क, हम्म। जैसे हम पैट डिस्कस करते हैं, एबिटा डिस्कस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अकाउंटिंग के लास्ट में आती हैं या वो साथ साथ मेंटेन करते चलना चाहिए? बेटा वो चीजें आप पढ़ोगे इन द लेटर सेमेस्टर्स। ठीक है, जो आप पैट और एबिटा की बात कर रहे हैं ना, हम्म। दैट वी यूज टू लर्न इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके मैम। ठीक है, तो आप जब फर्दर नेक्स्ट लेवल्स पे जाओगे ना एमबीए के, तब आप इन दो सब्जेक्ट्स यू विल लर्न दैट। ओके मैम। Ma'am, I have a question. यस, प्लीज आस्क। Ma'am, as you told, आपने मुझे बोला कि हम अकाउंट्स में चेंजेस कर सकते हैं हम्म कि अगर हमें कम दिखाना है अपने अकाउंट का रेवेन्यू कम दिखाना है तो हम उसमें चेंज करके भी दिखा सकते हैं, बट इफ इन केस जैसे कि गवर्नमेंटल को हमें प्रूफ्स देने होते हैं, हम्म सो एज एन एग्जांपल कि अगर बीजी भी होता है तो उस टाइम पे हम उसे कैसे मतलब कवर अप करेंगे। देखो, ये सब काम आपका करेगा अकाउंटेंट, आपका सीए। ठीक है, ये विंडो ड्रेसिंग करता है आपका सीए। और अभी तक देखो, अभी भी अगर हम देखें ना, तो हमारा सिस्टम, इंडिया का जो सिस्टम है ना, वो अभी भी ना, दे आर द सर्टेन लीकेजेस इन दैट सिस्टम। दो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सारी ट्रांजेक्शन्स आप इलेक्ट्रॉनिकली ले आओ, आप इलेक्ट्रॉनिक्स बिल जनरेट करो। ठीक है, आपके जीएसटी नंबर से सब कुछ अटैच होना चाहिए, लेकिन अभी भी जो बिजनेस लोग करते हैं, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी विदाउट बिल होती हैं, है ना। करेक्ट। यस मैम। लाइक मैं अगर ज्वेलर हूँ, मुझे गोल्ड चाहिए, एक तो ये है कि मैं ऑन पेपर गोल्ड खरीदूं। दूसरा तरीका क्या है? दुबई जा रहे हैं मेरे दोस्त, सबको बोलती हूँ एक एक चेन पहन कर आ जाओ। ठीक है, 1-1 लाख रुपए की चेन पहन कर आएंगे, थोड़ा सा मैं उनको प्रॉफिट दे दूंगी, 5-5 हजार रुपए दे दूंगी मेरी चेन लेकर आने में, और उस चेन को, जो 1 लाख की चेन है, उसको मैं 1.5 लाख पे सेल कर दूंगी।
वो कहीं पे ऑन पेपर नहीं आया। 45,000 पर चेन का जो प्रॉफिट हुआ वो मेरा हो गया, Very noted, ma'am. है ना। और खर्चे दिखाने हैं तो खर्चे आपका ऑडिटर्स के पास, जो आपके सीएस हैं, जो आपके अकाउंटेंट्स हैं, दे आर हैविंग द तोड़ ऑफ एवरीथिंग, जब तक सब कुछ हमारा ऑनलाइन नहीं आ जाता। Okay, ma'am. ओके बेटा। मैम आई वांट टू आस्क, जो ये आपने ड्रेसिंग बताया अभी, हाँ, ये लीगल है या इट्स इलीगल? देखो जब तक चोरी पकड़ी नहीं जाती तब तक लीगल है। पकड़ी गई तो इलीगल हो गया। गॉट इट मैम। इसमें आपका सीए स्मार्ट प्ले करता है। मैम मैम लेकिन एज एन एग्जांपल कि लास्ट ईयर एएमटी पे जीएसटी इनकम टैक्स रेड थी आई गेस, तो हम्म। उसमें भी यही जो विंडो ड्रेसिंग का सीन था यही चीज था। हाँ, वन ऑफ द रीजन, ओके। जितना भी मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स हो रहा है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ विंडो ड्रेसिंग ओनली। अब एक बात बताओ, ओके। इंडिया में जब कौन से स्पोर्ट्स हुए थे जो हमने ऑर्गेनाइज किए थे? कॉमनवेल्थ गेम हुआ था ना। जो चेयर 50 रुपए की मिलती है, वो चेयर जो है वो 50,000 रुपए की दिखाई गई। दैट इज व्हाट, हमने अपने एक्सपेंसेस को मैनिपुलेट किया, हमने अपने खर्चे ज्यादा करके दिखाए। ठीक है। अब अगर मैं मॉल से कोई कपड़ा खरीदती हूँ, मैं एक ड्रेस मॉल से खरीद के लाती हूँ, दैट आई कैन बाय फॉर द 5,000। मैं किसी ब्रांड की कोई ड्रेस खरीदती हूँ, आई एम पेइंग 5,000। वही ड्रेस मैं चांदनी चौक से जाके ले आऊं, दैट इज ऑफ 1,000 रुपीज। ठीक है, मैं कहाँ से लेकर आई, ये किसी को पता चल रहा है क्या? आपको अपनी मम्मा को बताना है। 1,000 की आप लेकर आए चांदनी चौक से, आप मम्मा को बता दो, देखो मम्मा मॉल में 5,000 की है, वो 4,000 का प्रॉफिट आप अपने पास रख लो, है ना। तो इन द सेम वे बिजनेस किस क्लाइंट से कहाँ से सामान कितने का खरीद रहा है, वो बिजनेस देखेगा, इस तरीके से प्रॉफिट जनरेट करेगा। ओके मैम। ठीक है। एनी अदर क्वेरी? रुचि मैम? Okay, so if you don't have any queries, I hope I'm audible, ma'am, right? Yes, you are audible. So, I extend my sincere thanks to Ms. Diwali Ratra, ma'am, for her valuable insights and time for our students, and to our students as well for their active participation and engagement. So, I request everyone now to kindly switch on their cameras for a group picture. And Ruchi ma'am, do take the feedbacks also, Yes, yes, sure, ma'am. whether they are Feedbacks getting are. what we are delivering or not. Yes, yes, ma'am. We also conduct feedback sessions in particular. So, Okay. yeah. Ruchi ma'am, you are not audible. Okay. Is everyone ready for the picture? They're still switching on their cameras. I hope you all must have enjoyed the session. Is it so? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Your feedback is too much valuable, because of your feedback we can change our strategies or the things in future also. So please do share your feedback. Okay, so the picture part is done. If anyone wants to say something to ma'am regarding the feedback, you're most welcome. मैम एज अ फीडबैक आई वांट टू से लाइक इतना इजीली मैंने कभी अंडरस्टूड नहीं कर पाया इन चीज़ों को। Thank you, तो Dinesh. इट्स एन वेरी
गुड वे जिसकी तरीके से मैं उसको समझ पाया। थैंक यू देवेश। अगर आपको लग रहा है कहीं पे हम लैग कर रहे हैं तो यू कैन प्रोवाइड दैट फीडबैक ऑल्सो सो दैट वी कैन डू द चेंजेस इन फ्यूचर accordingly. English is okay to everybody. Ma'am, it was a better experience as more we get the examples, so it is easy to understand the concept with the examples that were explained very clearly. Okay, fine. Thank you. We'll do it in the future. Are you all comfortable with the language? A Yes, mix ma'am. of Hindi and English is okay to everybody? Yes, Yeah. ma'am. Absolutely. Yes. Absolutely, ma'am. Okay, thank you. Ma'am, anything else you want to add here? No, Ruchi ma'am. Okay. So I think we can just wind up the meeting now. Okay. Yes, we can. Okay. So thank you, everybody. Thank you, everyone. Have a nice Sunday. Thank you. You may Welcome, leave ma'am. the meeting. Ruchi ma'am, can I leave? Yes, ma'am. Thank you so much. Thanks to everybody. Thank you.